सो श्लोक 23 के एक्सप्लेनेशन को अभी देखते हैं. एज डिस्क्राइब्ड बिफोर द शस्त्र विधि or the direction of the shastra is given to the different castes and orders of human society. Everyone is expected to follow these rules and regulations. If one does not follow them and acts whimsically according to his lust, greed and desire, then he will never be perfect in his life. In other words, a man may theoretically know all these things, but if he does not apply them in his own life, then he is to be known as the lowest of mankind. In the human form of life, a living entity is expected to be sane and to follow the regulations given for elevating his life to the highest platform. But if he does not follow them, then he degrades himself. But even if he follows the rules and regulations and moral principles and ultimately does not come to the stage of understanding the Supreme Lord, then all his knowledge becomes spoiled. And even if he accepts the existence of God, if he does not engage himself in the service of the Lord, his attempts are spoiled. Therefore, one should gradually raise himself to the platform of Krishna consciousness and devotional service. It is then and there that he can attain the highest perfectional stage, not otherwise. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लोग जो है जब ह्यूमन लाइफ में रहते हैं उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बिल्कुल शांत रहे, अपने लाइफ को एलिवेट करे, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म में जाए. लेकिन कभी कभार इंसान जब वो चीज़ें जो भगवान के जो भक्ति करने के जो प्रोसेसेस है उसको फॉलो नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो डिग्रेड हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं. लेकिन जब वो इवन इफ वो फॉलो करते हैं बट कभी कभार वो स्टेज तक आ नहीं पाते हैं, सुप्रीम लॉर्ड को समझ नहीं पाते हैं, तब उनका पूरा नॉलेज ही स्पॉइल्ड हो जाता है. सो इवन इफ यू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के एग्जिस्टेंस को वो एक्सेप्ट भी करता है लेकिन उस सर्विस में खुद को ठीक तरीके से इंगेज कर नहीं पाता है. तो उसमें क्या होता है ना कि सारे ही अटेम्प्ट्स जो है भगवान के करीब जाने का वो स्पॉइल्ड हो जाता है. सो सिर्फ जानने से नहीं होगा, उसको सही से एग्जीक्यूट करने की भी कोशिश करनी होगी. देयरफॉर वन शुड ग्रेजुअली raise himself to the platform of Krishna consciousness and devotional service. It is then and there that he can attain the highest perfectional stage, not otherwise. तो उसी तरीके से वो highest perfectional stage को attain कर सकता है. The word kama karata is very significant. A person who knowingly violates the rules acts in lust. He knows that this is forbidden and still he acts. This is called acting whimsically. He knows that this should be done, but still he does not do it. Therefore, he is called whimsical. Such persons are destined to be condemned by the Supreme Lord. Such persons cannot have the perfection which is meant for the human life. The human life is especially meant for purifying one's existence, and one who does not follow the rules and regulations cannot purify himself, nor can he attain the real stage of happiness. ठीक है. सो जो इंसान खुद को उस लेवल तक लेके नहीं जा सकता, यहाँ पे कमा कराता जो है वो सिग्निफिकेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. जो इंसान जो है रूल्स को वायलेट करता है वो लस्ट हवस में आ जाता है. धीरे 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 जो शांति से जो होती है वो चीज़ रखने से पेशेंस इज़ इम्पॉर्टेंट. दैट इज़ द थिंग. अगर तुम बहुत ज़्यादा ही ऐसे करोगे ना, इफ़ यू बिकम वेरी मच लाइक ये करना है वो करना है, दैट विल नॉट एक्चुअली हेल्प यू एन्जॉय वॉट यू अचीव. अगर तुमने मान लो मनी गेन करने के लिए खुद को इतना ज़्यादा ही परेशान कर लिया तो वो मनी गेन करने के बाद भी तुम खुशी महसूस नहीं करोगे उस परेशानी की. बिकॉज यू नो एनी फीलिंग मल्टीप्लाइज, वो वाइब्रेट होती रहती है, मल्टीप्लाई होता रहता है. So he knows that such persons are destined to be condemned by the Supreme Lord. Such persons cannot have the perfection which is meant for the human life. The human life is especially meant for purifying one's existence, and one who does not follow the rules and regulations cannot purify himself, nor can he attain the real stage of happiness. ठीक है. सो जो इंसान जो है वो परफेक्शन तक नहीं जा पाता है, खुद को नेगेटिविटी से दूर नहीं रख पाता है, खुद को प्यूरिफाई नहीं कर पाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही प्यूरिफाई करने को पता चलेगा. अगर पूछोगे कि कैसे मैं खुद को प्यूरिफाई करूँ, कैसे मैं नेगेटिविटी से निकलूँ, सो अगर आप खुद को प्यूरिफाई नहीं कर पाते हो तो आप उस रियल स्टेज ऑफ हैप्पीनेस तक जा ही नहीं पाओगे.
ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि मैं हर एक रूल को, रेगुलेशंस को हमेशा फॉलो करती हूँ। इंसान मैं भी हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, बट यस, मैं कोशिश कर रही हूँ खुद को भी परफेक्शन की तरफ लेके जाने का। मैं खुद कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यही जो इम्पेशंस है, यही चीज़ मैंने बहुत बार, मैं आज सबके सामने ही बता रही हूँ, भगवान को साक्षी मान के, सबको साक्षी मान के, जितने भी लोग इस भगवद गीता को सुन रहे हैं, कि मैंने बहुत बार ना रिश्तों में इम्पेशंस, स्पेसिफिकली रोमांटिक रिलेशनशिप्स में अटैचमेंट जहाँ होती है, इमोशंस जहाँ आ जाती है, स्पेसिफिकली जहाँ पे मुझे वो फीलिंग क्रिएट हुई है, वहाँ पे, क्योंकि जब भी मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, जब हम गाइड के रूप में रहते हैं, एक्सप्लेन करते, तो हमारी जुपिटर एक्टिव होती है, तो उस टाइम पे हम ना सही से समझा पाते हैं खुद को भी, सामने वाले को। बट जब भी हम किसी से प्यार करते हैं, तब वो हमारी मून एक्टिव होती है, इमोशंस, ठीक है। पैशन तो बाद में, जो हमारी शुक्र ग्रह है, वीनस है, वो पैशन को दिखाता है, लेकिन जो मून है हमारा, तो वो हमारा मन, इमोशंस, एक्सपेक्टेशन, जब वो होता है, वो एक्सपेक्टेशन के साथ साथ वो चीज़ बढ़ जाती है कि अभी चाहिए, अभी चाहिए, तो वो उसी से हमारी इम्पेशंस होती है। और ये बहुत नॉर्मल है, सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया के हर किसी इंसान को रिश्तों में ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, रिश्तों में ही इम्बैलेंस होता है, सब चीज़ वो अचीव कर लेता है, रिश्तों में ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका मून जो है वो बैलेंस नहीं है। मून ही है जो कि ऊपर नीचे चलता रहता है, यही है दुनिया। इसीलिए तो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, जो हाई टाइड लो टाइड होता है, वो मून के वजह से, हमारे जो पूर्णिमा के टाइम पे, न्यू मून, फुल मून में जो लोग अफेक्टेड होते नहीं होते हैं, मैंने कभी नोटिस नहीं किया था न्यू मून फुल मून में अफेक्टेड होती हूँ नहीं होती हूँ, बट हाँ, वो इच्छा बढ़ जाती है कि सामने वाले को देखूँ, बात करूँ, अगर कोई है स्पेशल पर्सन, उसको देखूँ, बात करूँ, उसका एक बार आवाज़ सुनूँ, वो चीज़ बढ़ जाती है, वो व्याकुलता होने लग जाती है, वो तड़प सी होने लग जाती है कि मुझे अभी इस इंसान से बात करना है, मुझे अभी इस इंसान से। तो वही व्याकुलता और तड़प को जब हम कंट्रोल कर लेते हैं, जब भी हम उस चीज़ में स्टेबल हो जाते हैं, देखिए मैं भी हर चीज़ में पेशेंट हूँ, सिर्फ यही चीज़ में मैंने खुद के अंदर देखा है, इसी चीज़ में, इसी। और तब सामने वाले ना, अगर वो समझदार नहीं होगा, वो इंसान आपको क्या करेगा ना, कि वो खुद संभाल नहीं पाएगा, छोड़ करके चला जाएगा, कि तुमको तो ना संभाल पा रहे हम, तुम तो ना। तब आप सोचेंगे, मैं, अगर आप लाइफ में बहुत सब कुछ अचीव भी करे हैं ना, तब आपको बहुत लेफ्ट आउट फील होगा। लेकिन एकमात्र भगवान और भगवान समतुल्य जो लोग होते हैं, जो आपके गुरु के समान हैं, वो इस चीज़ को समझ करके ना आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। भगवान के पास आप कितना भी व्याकुल होके जाओ, कितना भी रो, कितना भी बिलखो, कितना भी दर्द में आओ, बार बार बात करने चाहो, बार बार आप भगवद गीता इम्पेशेंट होके 10 बार पढ़ लो, आप कृष्ण का मंत्र 1000 टाइम्स जाप लो, आप महादेव को 10,000 बार जाप लो, डेस्परेट हो जाओ, वो और आपको करीब लाएंगे, आपको हेल्प करेंगे। तो जो भगवान समतुल्य इंसान है ना, वो कभी परेशान नहीं होते, आपको परेशानी में छोड़ते नहीं, आपको सबक सिखा सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप पेशेंस अपने बढ़ाए। भगवान को भी कभी कभी प्राप्त करने के लिए प्रॉब्लम होती है, कभी कभी आप बहुत प्रे करते हो, भगवान को इशारा नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं आएंगे, वो पेशेंस को बढ़ा रहे। तो जो भगवान समतुल्य इंसान होते हैं, जो अच्छे होते हैं, वो आपको छोड़ते नहीं, आपको बदलने में और बेहतर बनने में मदद करते हैं, आपका साथ रहकर, आपको कभी भी वो इंसान छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। सो इसी के साथ पहले भगवद गीता यहाँ तक ख़त्म करते। आज की भगवद गीता का श्लोक 23 यही तक, अगले दिन हम श्लोक 24 में कवर करेंगे। मैं भी इस जर्नी में हूँ, मेरे साथ साथ और भी जर्नी में है। मैं क्वेश्चंस में आऊँगी, जितने भी क्वेश्चंस है उसमें आऊँगी। पहले तो भगवद गीता तक पहले समाप्ति आते हैं। तो जितने भी लोग इस जर्नी में हैं, समझे कि जब बहुत ज़्यादा व्याकुलता हो रही है ना, कष्ट हो रहा है, समझ पा रहे हो कि गलती हो रही है, समझ पा रहे हो व्याकुलता हो रही है, समझ पा रहे हो सामने वाले के साथ एक बार बात करने की, एक बार उसका मैसेज का रिप्लाई पाने का, एक बार उसका आवाज़ सुनने का व्याकुलता हो रहा है, बट नहीं हो पा रहे। इसी से हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाते हैं, इसी से हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाते हैं, कि उस व्याकुलता, उस डेस्परेशन, उसको कंट्रोल कर पाना ही सबसे बड़ी विजय है। जर्नी है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाने का। तो वो अगर अचीव कर पाए तो और कैसे अचीव करेंगे? एक इष्ट देव बनाओ, महादेव मानो, दुर्गा माता मानो, कृष्ण भगवान मानो, राधा रानी मानो, कोई एक इष्ट भगवान अपना बनाओ जिसके साथ कनेक्टेड फील करो, और उसका बस जाप करो, बस सारा दिन उसका नाम का जाप करो। जब उस इंसान को मिस करते हो, उस इंसान का चेहरा सोच करके महादेव बोलो, कृष्ण बोलो, जिसको भी मानते हो उसका बस जाप करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, तब तक करते रहो जब तक कि ना अंदर से लगे कि हम
आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा रिलीफ हो रहा है। और इसको देवी पार्वती से ही मैं इंस्पायर्ड हूँ, वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। वो कैसे कितने सारे चुनौतियों को पार करके अपने मकसद तक पहुँची, अगर वो अपने प्यार को पा सकती है तो हम सभी पा सकते हैं। बस थोड़ी सी अपने अंदर की चेंजेस करने की ज़रूरत है, और उस चेंजेस रास्ता आसान नहीं होगा, छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते रहेंगे, हर बार मतलब परेशानी आती रहेगी, बट उसमें भी शांति रखना। जैसे मैंने आज ही सोचा था, कुछ ऐसे, मैं इसको डिटेल में आऊँगी, पहले तो भगवद गीता ये तक मिलेंगे और एक श्लोक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।